Hello everyone. Um, for our grammar, we are working with prepositions, right? Already worked with one video in which we studied about that is काइंड्स ऑफ preposition हमने देखे, राइट? अब काइंड्स ऑफ preposition कौन से हैं? दैट इज सिंपल preposition and compound preposition. Simple मतलब with one word preposition comes, and compound which have 2-3 words. Single words include in, at, before, above, etc. Compound words include decide on, because of, according to, then in view of, with reference to, etc. Okay. Further we finished with the kinds of preposition, simple, compound, and next we finished with the preposition of place, right? Preposition of place we done with explanation, and then we finished with the preposition of time as well. Okay, ये दो टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए थे. Preposition of place will have examples like in, on, at, above, beside, between, through, below, under, etc. And preposition of time includes in, on, at, for, since, during, while, until, by, etc. Right? So these are examples of preposition of time. Now third one we are next topic we are going to study is preposition of movement. Okay, हम अब preposition of movement देखने वाले हैं. Preposition of a movement, that is it is contrast to place actually. Okay, इनके ज़्यादातर जो examples होंगे वो place के तरह ही होंगे, जिस तरह से हमने preposition of place पढ़ा है. These are, we can tell these are contrast among preposition of place. For example, if I write examples of this like out of, then across, then down, okay, then on to, then into, off, right, along. तो काफ़ी ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, काफ़ी ये सारे एग्जांपल्स हमने preposition of place में नोट डाउन किया है, राइट? वी हैव डन दीज ऑल एग्जांपल्स इन preposition of place ऑलमोस्ट. सो कहीं ना कहीं preposition of movement में भी कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स यूज़ होंगे. ओके, सो लेट अस सी कि ये एग्जांपल्स किस तरह से यूज़ हो सकते हैं. ओके, डाउन इज़ ऑलरेडी रिटन, राइट? सॉरी. ओके, सो कई ऐसे एग्जांपल्स हैं विच वी कैन यूज़ इन दिस. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हेयर if I write here Mrs. Khanna got dash a taxi and quickly drove away dash the hospital. Okay, that is Mrs. Khanna got dash the taxi. अब if we translate this sentence तो यही होगा कि Mrs. Khanna टैक्सी से बाहर निकले और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चले गए, राइट? सो अगर हम इसकी इंग्लिश में करें, सो इट विल बी Mrs. Khanna got out of a taxi and quickly drove away to the hospital. ओके, टू द हॉस्पिटल. सो ये मूवमेंट है कि मिसेस खन्ना ने टैक्सी से बाहर निकलते ही क्या किया,
यहाँ पर मूवमेंट शो हो रहा है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इफ आई राइट डाउन if I write down if I write down I can't fit so many clothes dash this small bag. So what will be here in this? I can't fit so many clothes in this small bag. यहाँ पर in आएगा तो ये place भी है, but you know at a moment, like अगर मैं अभी अगर मुझसे कोई पूछे, say like suppose anyone comes and ask me, are you going down? As say like suppose if I am living in flat, okay, so my neighbor will come and ask me, will you go down? So what I can tell is no, I am not going down. Okay, I am not going down मतलब वहाँ पर जो down है वो movement के बारे में बताएगा कि मैं अभी नीचे नहीं जा रही हूँ। Understood? Okay, and then for example even I can tell please look towards the teacher. Okay, towards the teacher कहाँ देखना है? It is towards the teacher, teacher की तरफ. So towards भी उस तरह से use होगा. Yes, and then don't jump over the wall. Like if I write here, don't jump over the wall. That is wall के ऊपर से jump मत करो. Right? So over here is a preposition of movement कि इस वक्त आप वॉल के ऊपर से जंप मत करो। ओके, लाइक मैं देख रही हूँ कोई वॉल के ऊपर से जंप कर रहा है एंड आई एम इंस्ट्रक्टिंग हिम और हर कि डोंट जंप ओवर द वॉल। तो इस तरह से मूवमेंट जो है वो यूज़ होते इस तरह से ये सारे वर्ड्स मूवमेंट के रिलेटेड यूज़ होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ देयर आर सर्टेन अदर वी कैन टेल prepositions. ओके, मूवमेंट के बाद देयर आर अदर prepositions. ओके, और आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ preposition आई कैन हेयर राइट अदर preposition. ओके, नाउ अदर preposition में कौन से हो सकते हैं? से लाइक सपोज इफ आई से जस्ट 1 minute. If I say between, right, or I go on with among, okay, or else if I go with beside, and yes, yeah, besides. Okay, ये दो words beside और besides, right, between, among, किस तरह से ये सारे words यूज़ होंगे? लेट अस सी. ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नियर मीनिंग ही लगते हैं इन सब के, लेकिन एक्चुअल में इनके मीनिंग्स नियर नहीं हैं. लेट अस सी वन एग्जांपल. से लाइक सपोज इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर द प्राइम नंबर्स between 10 and 20, राइट. तो वहाँ पर तो बिटवीन आया क्योंकि हमें 10 और 20 के बीच के नंबर्स के बारे में बात करनी है, राइट, बिटवीन. नाउ इफ आई गिव यू वन अनदर एग्जांपल, से लाइक सपोज ही वॉज हैप्पी टू बी बैक among his friends. यहाँ पर in this sentence he was happy to be back among his friends. Among
सी अब अगर मैं इसके बारे में अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँ, इफ़ आई ट्रांसलेट दिस, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20? 10 एंड 20 में प्राइम नंबर्स कौन से हैं? में यूज़ हुआ। ओके, इफ़ आई ट्रांसलेट दिस, ही वॉज हैप्पी टू बी बैक अमंग हिज फ्रेंड्स, वो बहुत खुश हुआ अपने दोस्तों में वापस आकर। यहाँ पर भी ट्रांसलेशन में ही हुई, राइट, बट इट इज़ डिफरेंस। यहाँ पर आई कैन नॉट राइट बिटवीन मतलब फ्रेंड्स के बीच में हम नहीं जा सकते, उनके साथ हैं हम। अंडरस्टूड? वी आर टुगेदर, नॉट इन देम। अंडरस्टूड? बिटवीन कहीं ना कहीं हमें इन शो कराएगा, एंड अमंग जो है वो साथ का जो मीनिंग है वो रेफर करेगा। अंडरस्टूड? I hope you people understood these two difference. Okay. Now between, among. Okay, let us see about beside. अगर हम beside के बारे में बात करें तो beside जो है, if easily I tell you what is beside. Okay, beside जो है वो place और position को रेफर करता है। कौन सी position को? That is by the side or next to. By the side or next to. Like for example, अगर मैं बोलूँ कि sit beside XYZ, कोई भी नाम, like for example if I tell okay sit beside Karan and open your book, तो वहाँ पर बोलूँगी कि करण के साइड में, दैट इज़ बाय द साइड ऑफ करण बैठ जाइए और अपनी बुक ओपन कीजिए, राइट। अब सेम अगर मैं आपको बिसाइड्स का मतलब दूँ, इफ़ आई डिस्कस अबाउट बिसाइड्स, तो बिसाइड्स क्या है? इट इज़ लाइक इट इज़ इट इन एडिशन टू। इट ये क्या रेफर करता है? इट इज़ इन एडिशन टू। अब इन एडिशन टू मतलब क्या? इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड एज प्रेपोजिशन। कॉमनली ये बिस्ट प्रेपोजिशन में यूज़ नहीं होता, बहुत रेयर यूज़ होता है प्रेपोजिशन में। अब इफ़ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज़ अ मास्टर, we can tell chess player. My brother is a master chess player. Besides being a talented painter. Now see the meaning. See, my brother is a master chess player besides being a talented painter. Talented painter, that is मेरा ब्रदर चेस जो गेम है उसमें भी मास्टर है। कैसे? लेट अस गो ऑन विद कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। टैलेंटेड पेंटर के अलावा, हेयर इट इज़ अलावा, मेरा भाई चेस में भी मास्टर है। अंडरस्टूड? दिस कैन बी, दिस विल बी ट्रांसलेशन ऑफ दिस बिसाइड, नेक्स्ट टू या बाय द साइड। ओके, अगर मैं बोलूँ कि वी सेट बिसाइड ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन पार्क। ओके, ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साइड में बैठे थे। ओके, वी सेट बिसाइड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और जबकि ये नहीं बोल सकते वी सेट बिसाइड्स ब्यूटीफुल फ्लावर, नो। ओके, वी कैन टेल, ओके वी कैन टेल शी इज़ गुड पेंटर बिसाइड्स शी इज़ गुड इन स्टडीज़। ओके, लाइक गुड इन स्टडीज़ के अलावा वो गुड पेंटर भी है, तो वहाँ पर बिसाइड्स यूज़ होगा। Understood everyone? Hope you people understood. Okay, now this was regarding these four: between, among, beside and
बिसाइड्स। ओके, अब कई preposition जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ से लाइक सपोज ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त, ओके, कई बार हम एक जगह से जो दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है उसके वक्त, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ बाय हेयर, ओके, सी बाय की बात करें तो बाय जो है वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट की फॉर्म्स के साथ यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ आर्टिकल। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सी, जर्नी बाय ट्रेन इज मोर enjoyable than by bus। सी, यहाँ पर ट्रेन एंड बस दोनों नाउन है, इनके साथ अगर हम जर्नी की बात नहीं करते ना तो आर्टिकल्स लगने थे। ओके, आई लाइक टू से लाइक सपोज इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेन इज़ मोर comfortable than a bus। ओके, और आई कैन राइट अ ट्रेन इज़ मोर कंफर्टेबल देन अ बस। ट्रेन जो है वो बस से ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, तो वहाँ पर बाय क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जर्नी, हम ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ ए एंड द, ये तीन चीज़ें हट जाती है और बाय यूज़ होता है। अंडरस्टूड? लाइक इफ आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, लाइक वी हैड टू ट्रेवल टू द केव्स बाय बोट। ओके, बाय बोट ये भी ट्रेवलिंग का ही काम बता रहे हैं कि हमें बाय बोट जाना पड़ेगा केव्स तक पहुंचने के लिए। वी हैड टू ट्रेवल टू द केव्स बाय बोट, हमें केव्स तक जर्नी जो है वो बाय बोट करना होगा। सो बाय बोट इंस्टेड ऑफ आर्टिकल वी आर यूजिंग बाय बोट। अंडरस्टूड? नाउ ये तो हुई जर्नी की बात। ओके, ट्रेन या बस या फिर वी कैन टेल बोट। ओके, बट ये जो बाय है वो तीन चीज़ों के साथ यूज़ नहीं होता। यू नो कौन सी चीज़ों के साथ, सॉरी, दो चीज़ों के साथ बाय यूज़ नहीं होता, इवन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेवलिंग ऑल्सो। ओके, कौन सी चीज़ें? दैट इज़ कार एंड बाइक के साथ बाय यूज़ नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू माई cousins traveled in their uncle's car. What happened here? In their uncle's car. It's not by their uncle's car. Okay, may यहाँ पर in जो है वो may को रेफर करेगा। मेरे कजिन्स अंकल की कार में ट्रेवल कर रहे थे। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर बाय यूज़ नहीं होगा। ओके, इफ़ आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, लेट अस सी वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू बाइक ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द यंग मैन वेंट देयर ऑन हिज बाइक। We cannot write by his bike. Okay, once again, by किसके साथ यूज हो सकता है? That is ट्रेन या बोट या बस के साथ। कार या बाइक के साथ आइदर इन और ऑन यूज होगा। अंडरस्टूड? बाय विल नॉट बी यूज्ड विद दैट। ओके एवरीवन? ओके, सो दीज आर सर्टेन prepositions or basic knowledge about prepositions which will definitely help you with preparation of preposition. Okay, now I will
upload with one of the exercise also along in this video itself, which you have to work on for your preposition lesson, preposition explanation. Okay, so see that you understand both my topics well of preposition, and go through with that exercise as well. Take care everyone, and study well please.